Can you see the screen? Yes, ma'am. Okay. So we have started this next chapter, which was risky assets. So risky assets, generally we'll be talking about stocks, and there are so many like commodities or currency. Everything is mostly almost risky. So we should know what is, suppose this is a stock, you have a stock whose price is denoted by ST. ST is the price of the stock at time T. So this is actually a random variable. Okay, now yesterday I was telling you what is a random variable. So random variable is a function from your sample space to generally positive or any real number you can assign, right? So I have given you example कि suppose you toss a coin twice. So आपका जो sample space बनेगा that will be HH, H tail, tail head, tail tail. Suppose you define a function number of tails. तो क्या होगा? This will be assigned to 0, this will be assigned to 1, this will be assigned to 1, this will be assigned to 2. So this is a random variable. So what it is doing, it is associating to each of the outcome with a real number. So random variable is actually a function. So इसका मतलब जो आपका ST है, suppose आपके पास ST is something like this, omega 2, क्योंकि स्टॉक प्राइस वी आर सेइंग पॉजिटिव होगा, इसलिए हम ये लेंगे 0 to infinity. ओके, सो व्हाई 0 to infinity? बिकॉज ऑफ पॉजिटिविटी ऑफ प्राइसेस. ये हमने ऑलरेडी अजम्पशन ले रखी है, राइट? नाउ व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज पॉसिबल मार्केट सिनेरियोस. ठीक है, नाउ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, यू कैन हैव मेनी टीज. जैसे हमने पहले किया था कि आपके पास, जब हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था कि टी सिर्फ एक टी इज इक्वल टू 0 था और टी इज इक्वल टू 1 था. नाउ यू कैन हैव एनी टी एंड दिस there can be any number of possible market scenarios. So ST, for example, suppose there is a market जिसमें चांसेस हैं बूम के, मतलब आपकी मार्केट अप हुई, या फिर रिसेशन के, मतलब आपकी मार्केट डाउन हुई, या फिर स्टेग्नेशन के. मान लो 3 सिनेरियोज हैं, तो उस केस में आपका ओमेगा क्या हो जाएगा? इसका सेट, बूम, स्टेग्नेशन और रिसेशन, मतलब जो भी 3 सिनेरियोज हैं. सो दिस इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल मार्केट सिनेरियोज. इज दिस थिंग क्लियर बेटा? And when we mathematically deal with things, so for now we will assume that T is discrete. Later on we will also move to continuous models, but as of now we will assume that T is discrete. इसका क्या मतलब है कि आपका जो T is equal to 0 से लेके suppose T is equal to capital T तक आपने काम करना है. So हमने एक टाउ फिक्स कर रखा है, टाउ is fixed. So इसका मतलब T के बाद हम T is equal to टाउ की बात करेंगे, then T is equal to 2 टाउ की बात करेंगे, T is equal to 3 tau की, T is equal to 4 tau की, and so on. So this capital T is some n tau. ठीक है? So tau can be as small as you want. Suppose I want my analysis to be very fine, so I can take tau is equal to say 10 to minus 10 seconds. So that is my choice. Is that okay बेटा? So यहाँ पे actually जो आपका T है वो tau है, और यहाँ पे actually T जो है 2 tau है. बट फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ नोटेशन इसको हम 1 2 3 4 n तक लिख देते हैं. वी से t इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब होगा? t इज इक्वल टू टाउ. t इज इक्वल टू 2 का क्या मतलब है? t इज इक्वल टू 2 टाउ. मार्केट में भी आपका यही सिनेरियो चलता है कि आप एक टाउ फिक्स होता है, टाउ इज योर टाइम स्टेप. सो टाउ इज योर टाइम स्टेप. So whenever you are saying that I am doing the analysis for t is equal to 4, it means that you are doing the analysis for t is equal to 4 tau. क्लियर ये चीज बेटा? ये आपकी कुछ assumptions हैं जो हमने फिक्स करनी है, राइट? सो फॉर एग्जांपल अगर आपने डेली बेसिस पे कोई चार्ट है आपका ऑफ स्टॉक प्राइस, उसमें टाउ की वैल्यू क्या होगी? अगर मैंने 0 से सपोज 1, दिस इज t इज इक्वल टू 0 years, दिस इज t इज इक्वल टू 1 years. तो इसमें टाउ की वैल्यू क्या होगी? 1/365, है ना? हर बार आप क्या कर रहे हो? हर डे पे, डेली पे कर रहे हो, मतलब हर डे पे आप एनालिसिस कर रहे हो. तो टाउ इज इक्वल टू 1/365. क्लियर बेटा?
और मार्केट में जो जनरली हमारे एनालिसिस होता है वो डेली बेसिस पे होता है या फिर आपका मंथली बेसिस पे होता है। मंथली पे स्टॉक्स का इतना नहीं होता, वो ऑप्शंस का होता है। उस केस में टाउ क्या होगा आपका 1/12, है ना। वीकली होगा कई बार, वीकली में टाउ या तो 1/52 होगा या 1/53, कुछ दिन आगे पीछे हो सकते हैं, तो 1/52 वी जनरली टेक। क्लियर बेटा, ये सबको समझ में आ गया? ईशांगी, कौन कौन है आज क्लास में? हाँ जी मैम। Yes, Okay. ma'am, समझ आ रहा है. Okay, fine. So let us consider this example. So I have this scenario. सिनेरियो में लिख रही हूँ ω1 ω2, यहाँ पे मैं सिनेरियोस लिखूंगी। हमेशा ऐसे ही बनाएंगे कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं। मान लो ये है आपका बूम और ये आपका रिसेशन, मान लो दो ही पॉसिबिलिटीज हैं जो हमने पहले लिया था, राइट। एंड सपोज माई S0 इज 10, S0 इज 10, मतलब करंट प्राइस जो है वो 10 है। ओके, सो आपके पास क्या हो सकता है, फर्स्ट केस में ये तो 10 रहेगा S0, और मान लो एक ही है S1, सो इसमें आपके पास ये पॉसिबिलिटीज है 12/7। तो ये तो हमारा पुराना मॉडल हो गया, सिंपल वाला, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द, इसमें आपका ओमेगा क्या हो गया, ओमेगा इज ω1 एंड ω2, और आपका ये S0, मतलब और दो टाइम स्टेप्स हैं सिर्फ। सो दिस इज T इज इक्वल टू 0, ये T इज इक्वल टू 1, so this is T is equal to 0, T is equal to 1, actually means T is equal to tau, whatever is your tau. Fine beta. So we denote it with a tree, something like this. What we do, we just plot, this is T is equal to 0, this is T is equal to 1, T is equal to 0 पे S0 वैल्यू है 10, उसके बाद T is equal to 1 पे क्या चांसेस है कि या तो ये ऊपर जाएगा 12 हो जाएगा, या ये नीचे जाएगा ये 7 हो जाएगा, ठीक है। सो वी डिनोट द स्टॉक प्राइस विद दिस ट्री। ओके, ये वाला अपना पुराना एग्जांपल है। लेट अस लुक एट वन मोर एग्जांपल। सपोज आपके पास तीन सिनेरियोज है मार्केट में, देयर आर 3 सिनेरियोज, ω1 ω2 ω3, एंड सपोज टाइम स्टेप्स भी हमने 3 लिए हुए हैं, T is equal to 0, T is equal to 1, T is equal to 2, अगेन 1 2 का मतलब T is equal to tau एंड T is equal to 2 tau। तो उस केस में मान लो आपके पास T0 क्या होगा, हमेशा ये कांस्टेंट होगा, क्योंकि T0 पे आपका जो S0 है वो नोन है। T0 पे S0 इज अ रैंडम वेरिएबल विच इज अ कांस्टेंट रैंडम वेरिएबल। S1 जो है वो आपका नॉन कांस्टेंट रैंडम वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे ये है 58 58 52, और मान लो S2 आपको दिया हुआ है 60 52 53। इज दैट ओके बेटा? तो इसका भी आप ऐसे वी जस्ट मेक ट्रीज फॉर दिस थिंग ऑल्सो। तो कैसे बनाओगे आप, T is equal to 0, T is equal to 1, T is equal to 2, राइट। सो यहाँ पे आपको ये इसको बोलते हैं रूट, 55 इज योर रूट, एंड देन यू हैव T is equal to 1 पे आप ऊपर जा सकते हो 58, या फिर नीचे आ सकते हो 52, here is 52, एंड नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, 58 से अगर 58 हो आप 60 तक जा सकते हो, या फिर नेक्स्ट 52 पे तक जा. या 52 पे, राइट। सो आपका 52 इज हियर, ये इसके पैरेलल, राइट। सॉरी, टाइम भी आपका यहाँ पे मैंने प्लॉट किया ना, सो यहाँ पे इसके नीचे 52 या फिर 53, 53 इज समवेयर हियर। सो यहाँ से 3 नोड्स आएंगे, ये। इज दैट ओके बेटा? नहीं, मैंने कुछ गलत बना दिया, 2 मिनट। तो आपके पास कैसे बनेगा, 55 से आप 58 पे गए, राइट, और उसके बाद आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, 60 पे या 52 पे। T इज इक्वल टू 1 पे तो आपकी यही दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, 52 या 58, और T इज इक्वल टू 0 पे आपकी 60 है और 52 है और 53 है। कैसे ज्वाइन करोगे इसको, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं देखो, 58 से आप आ सकते हो 60 पे, 52 पे या 53 पे, है ना, और 52 से भी आ सकते हो आप इन तीनों उसमें। 53 पे 53. अच्छा, ये सही है, बताओ जरा, या कुछ और होना चाहिए? ये है ना बेटा कि ω1 सिचुएशन में यही होगा, और ω2 सिचुएशन में ये होगा, और ω3 सिचुएशन में ये होगा, ठीक है।
तो आपका कैसे बनेगा चार्ट? मैम 58 से 53 कैसे चले गए? हाँ वही कह रही हूँ कि ये ऐसे नहीं बनेगा आपका, आपका यही बनेगा 55, 58, 60, ठीक है, एक ये बनेगा आपका, दूसरा बनेगा 55, 58 एंड 52, तीसरा बनेगा आपका 55, 52 एंड 53. सो दिस इज द डायग्राम. इज दैट ओके बेटा? सो इस ऐसे नहीं हो सकता है कि दो ये और एक ये, क्योंकि मार्केट में एक ही सिनेरियो आएगा ना, या ये वाला या ये वाला या ये वाला. अब क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Okay, fine. So just make one chart quickly. Suppose that the stock price on any given day, suppose stock price on any given day can either be 5% higher or 4% lower, can either be 5% higher or 4% lower than the previous, than on the previous day. Right. Sketch the tree responding representing possible stock price movements over the next 3 days. बनाओ बेटा, ट्री बनाना है आपने फॉर नेक्स्ट 3 days, और आपको एस नॉट दिया हुआ है 20. कैसा बनेगा? सिंपल. देखो आपके पास क्या 3 days है, सिनेरियोस पॉसिबल 2 ही है, मतलब आपके पास t is equal to 0, t is equal to 1, t is equal to 2, t is equal to 3. यहाँ पे आपका 20, 20 है, राइट. अब देखो ये 20 का जो नेक्स्ट डे है वो क्या बन सकता है? 20 नेक्स्ट डे क्या बन सकता है बेटा? या तो 5% हायर या 4% लोअर, राइट. सो आपका 5% हायर मींस हाउ मच? 20 का 5% कितना हो गया? 1. 1. मतलब 21 बनेगा, या लोअर 4% लोअर, 20 का 4% 0.8. तो कितना हो गया? 19.2. 19.2, राइट. आगे इसका बनेगा और इसका भी बनेगा, ठीक है. और फिर इसके दो केसेस बनेंगे, इसके दो केसेस बनेंगे, इसके दो केसेस बनेंगे, इसके दो केसेस बनेंगे. समझ आया? सो कैन यू सी दिस इज हाउ द ट्री विल हैव ब्रांचेस. मतलब यहाँ 20 से स्टार्ट करोगे, फिर दो केसेस हैं, उसके आगे क्योंकि नेक्स्ट डे फिर दो केसेस हैं, यहाँ भी दो केसेस हैं, यहाँ फर्दर दो केसेस हैं, यहाँ फर्दर दो केसेस हैं, ये भी है और ये भी है, ठीक है. तो ये हम कल लैब में बनाएंगे, क्योंकि you can have n number of days, then we will just make a program कि कैसे आपका ये ट्री बनता है. फाइन बेटा. सो ये समझ में आ गया कि स्टॉक प्राइस इज अ रैंडम वेरिएबल एंड पॉसिबल मार्केट सिनेरियोस के केस में you will have different situations, right? So this actually happens. So आपके पास यहाँ पे बहुत सारा डेटा होता है, क्योंकि ये जो है अगर आपके पास मान लो एवरी सेकंड का डेटा भी हो सकता है, और यहाँ पे भी बहुत सारा डेटा होता है, क्योंकि बहुत सारी पॉसिबल सिनेरियोस हो सकते हैं मार्केट में. So now having defined the stock prices, next thing we do is returns. जैसे हमने रिस्क फ्री एसेट्स के लिए किया था, तो यहाँ पे भी सेम हम रिटर्न डिफाइन करते हैं. Suppose you are working on an interval n to m. This is your time interval. इसका क्या मतलब है? t is equal to n मतलब n टाउ से लेके m टाउ तक आपका टाइम इंटरवल है. यहाँ पे आपने पैसा इन्वेस्ट किया, और यहाँ पे आपने मान लो उसको you want to know how much profit you have earned. So कैसे define how much is the return? So we define it like this. क्या होगा बेटा बताइए? रिटर्न की डेफिनेशन सेम जो हम बार बार यूज कर रहे हैं. फाइनल प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस. क्लियर? ओके. एंड समटाइम्स वी डिफाइन वन स्टेप रिटर्न्स. मतलब अगर आपका एक टाइम स्टेप आगे गया, for example I went from t is equal to say 1 to t is equal to 2, so we define k1, which is defined as k1 is defined as k1 minus k0 upon k0. Okay. So generally we define kn as sn minus 1 upon sn minus 1. So these are called one step returns. फाइन बेटा. सो ये वाला जो आपका ऊपर वाला सिनेरियो था, जिसमें आपके पास ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 था,
and you have t is equal to 0, 1, 2. You had these prices 55, 55, 55. Here you had 58, 58 and 52, 60, 52, 53. So यहाँ पे आपके पास जो returns होंगे, so we make a table for returns also. We call it K1 and K2, right? And you can also have here K. और क्या क्या हो सकता है बेटा? 01 का भी हो सकता है आपके पास. That is same as K1 है ना? आपके पास K02 का भी हो सकता है. समझ आ गया ना? K01 is same as K1. This is how it is defined. So this is same. Kn is actually defined as Kn minus 1 comma n. Clear, beta? So can you tell me what is K1? Anybody? यहाँ पे क्या आएगा? 58 minus 55 upon 55. और यहाँ पे 58 minus 55 upon 55. यहाँ पे 52 minus 55 upon 55. So this is equal to 5.45%. This is equal to 5.45%. And this is equal to minus 5.45%. Okay, beta? So can you see now your return is again a random variable, which at t is equal to 1 can take these values. Similarly, at t is equal to 2 also you can have a set of 3 values. That is again a random variable which is taking these possible values. समझ आ रहा है बेटा? Understood? Yes, ma'am. Okay. So and sometimes आपको पता है कि stocks पे dividends भी मिलते हैं आपको. So if there are dividends, if dividends are paid, so that also we assume कि जो dividend है वो किसी या तो t is equal to 1 which is tau, t is equal to 2 tau, t is equal to 3 tau, t is equal to 4 tau पे ही पे होगा, क्योंकि हम बीच वाला नहीं ले रहे हैं चीजें. So we assume कि जो आपका dividend पे होगा वो इसी किसी time step पे होगा. तो suppose आपका dividend पे हुआ है at time n. Suppose company gives the dividend, company gives the dividend, इसको मैं लिखूं DIVN at t is equal to n tau. Then आपके रिटर्न में क्या फर्क पड़ेगा बता बताइए? Then Kn will be, अभी हमने क्या किया था? Sn minus 1 by Sn किया था ना. अब क्योंकि आपको डिविडेंड भी मिल गया तो आपको जो भी प्राइस Sn है प्लस डिविडेंड जो आपको मिला, तो आपका फाइनल प्राइस जो आपके पास है मनी, दिस मच इज द अमाउंट. सो आप इसको रिटर्न में काउंट करोगे. क्लियर बेटा? ये समझ में आ गया सबको? डिविडेंड, एवरीबॉडी नोज व्हाट इज डिविडेंड. सो इफ यू बाय अ स्टॉक ऑफ अ कंपनी, सो डिपेंडिंग ऑन द प्रॉफिट्स, एक तो कंपनी का अगर आपने स्टॉक खरीदा है तो उसका अगर शेयर प्राइस बढ़ता है दैट इज योर प्रॉफिट. अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी डिसाइड्स कि इतना हमें वी आर गोइंग इन अ नाइस मोड, तो वो कुछ टाइम बाद अपने सारे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है. दैट इज अ पार्ट ऑफ इट्स प्रॉफिट्स. ओके बेटा? So if dividends are paid, this is how you will change your formulas to find out the returns. किसी को डाउट यहाँ तक? Okay. So now are these returns additive? जैसे पहले था additive है यहाँ पे. Additive मतलब अगर मैंने K01 निकाल लिया और K सपोज 01 निकाल लिया, K12 निकाल लिया, so will this be equal to K02? बताइए होगा? Yes, no? होना चाहिए मैम. पहले नहीं था हमारा. क्यों होना चाहिए बेटा? ये देखो हर इसका साल क्या का अलग अलग आएगा ना. हाँ, this is S1 minus S0 upon S0. What is this? This is S2 minus S1 upon S1. And what is this? S of 2 minus S of 0 upon S0. So there is no way that we should not expect it to be additive. But ऐसा हमें अगर ऐसा हो जाए कि हमारा रिटर्न एडिटिव हो तो नॉर्मल लोगों के लिए इजी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि
हमें यही ऐसा ही हमारा सिनेरियो होना चाहिए कि जो पहले साल प्रॉफिट हुआ प्लस जो दूसरे साल हुआ वो दैट शुड बी इक्वल टू जो दोनों साल में हुआ, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी वांट। सो इन हमें यहाँ पे ये एडिटिविटी नहीं है, सो दिस इज आंसर इज नो, राइट। सो यू कैन जस्ट वेरीफाई। फॉर एग्जांपल यू हैव दिस सिनेरियो, a formula भी मैच नहीं करता और otherwise also you can verify. Suppose your S naught is 100, you have a scenario in which S1 is 110 and S2 is 100. तो इसमें आपका K1 देख लो, K01 will be 110 minus 100 upon 100. So this is equal to 10%. Okay. So what is your K12? That will be S1, S2, which is 100 minus 110 upon 100. S2 minus S1 upon S1, sorry, 110, right? So how much is this? कितना है ये? Minus 9.09%. और K02 is your 100 minus 100 upon 100, 0%, right? So obviously this plus this करोगे तो this is not equal to this. This plus this is not equal to. So additive नहीं है। तो पहले जब additivity नहीं थी तब हमने क्या किया था? Do you remember anybody? पहले भी जब हमने risk free assets पढ़े थे वहां पे additivity नहीं थी, तो we had changed something. किसी को याद है? किसी को नहीं याद? अनिकेत आपको नहीं याद बेटा? मैम हमने लॉग लिया था। So we have defined something called logarithmic returns, right? So we define for additivity, we define logarithmic returns. So what is logarithmic return? इसको हम small k से denote करते हैं. This is same as, this is actually Sm upon Sn log, natural log of this thing. So this is called logarithmic return, and you can verify that this is additive. Can you verify how this is additive? कर सकते हो बेटा? Additive क्यों है ये? Yes. करो Yes, ma'am. करो सब लोग। सब उससे पहले you can have some relations. यहाँ से आपके पास क्या आ गया कि Sm is equal to Sn e raised to power Knm, right? I have just taken e raised to power on both sides. और आपका जो Sm है, अब मेरा Kmn जो है, sorry, Knm जो है, that is my Sm minus Sn upon Sn. So इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए. So you will get this relation that this is equal to e raised to power Knm minus 1. Okay, Knm. So this is the relation between your logarithmic return and the return which we generally define. Okay, this relation you may use somewhere. Fine. And उसके बाद आपका one more thing, अगर आपका dividend आता है, so if there is dividend involved, if dividend is paid at time step at time t is equal to n tau, then your Knm will be modified as log of s. अगर t is equal to आपका n पे मिला है तो आप जहां भी मिला है, मतलब अगर m पे मिला है तो ऊपर करोगे, अगर n पे मिला है तो ऐसे करोगे. So this is how you will do, right beta? So wherever dividends are paid, you will add it to your price. ठीक है, तो आपको कंसीडर करना है कि वो आपका उस टाइम स्टेप का प्राइस है. एसएन मतलब वो आपकी वैल्यू है. यहाँ पे प्राइस नहीं कहेंगे हम, वो आपकी वैल्यू है, आपके पास जो एंटिटी है, राइट? नाउ यू प्रूव दैट दिस इज एडिटिव. सो आई वांट यू टू प्रूव दैट k and m is equal to, so this is the scenario, n is my starting point, m is my ending point. So I want to prove that k and m is k n plus 1, है ना? एक स्टेप में जाओगे आप. फिर then k n plus 1 to n plus 2, that is your next step, and so on. k n m minus 1 to m, right? इसको अगेन जैसे मैंने पहले नोटेशन ली है, इसके लिए नोटेशन है kn, इसके लिए नोटेशन है आपकी सॉरी kn नहीं, kn plus 1, इसके लिए kn plus 2 and so on.
इसके लिए नोटेशन है के एम। करोगे प्रूव बेटा ये वाला रिलेशन? कैसे करोगे बस बता दो, एक लाइन का है। जो लॉग वाले टर्म्स आएंगे वो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएंगे। हाँ बस सिंपल ये देखो, आपका जो के एन एम है, अभी हमने फॉर्मूला लिखा ना, के एन एम जो है आपका दैट इज हियर दैट एस एम इज इक्वल टू एस एन ई रेस्ट पावर के एन एम, राइट? दिस इज वन रिलेशन वी हैव। नाउ वी कैन लुक एट लाइक दिस कि मेरे पास जो एस नॉट है यहाँ पे, सॉरी एस एन है, ठीक है, एस एन है, उससे एक स्टेप में आगे गई तो व्हाट विल बी माय एस एन प्लस वन? एस एन प्लस वन विल बी एस एन इंटू ई रेस टू पावर कितना? के, है ना, ई रेस पावर के एन कॉमा एन प्लस वन। यही वाला रिलेशन यूज करो एक स्टेप के लिए, फॉर वन स्टेप। और एस देन यू गो टू द नेक्स्ट स्टेप, एन प्लस टू। एस एन प्लस टू क्या होगा? एस एन प्लस वन ई रेस पावर के एन प्लस वन कॉमा एन प्लस टू। And then similarly, what will be your SM? SM will be SM minus 1 e raised to power k m minus 1 m, right? Now you multiply. So what you'll get, these things will cancel. So you'll get SM is equal to SN e raised to power, product होगा तो sum हो जाएगा powers का, k n m plus n plus 1, k n plus 1, n plus 2, and so on, k m minus 1 comma m. So this is your SM. So you have one relation here and one relation here. So that tells you that this quantity is equal to this quantity, right? So you get k n m is equal to k n n plus 1, k plus k n plus 1 n plus 2, and so on, k m minus 1 m. So this proves that your return, logarithmic return, is additive. ओके बेटा, यहाँ तक क्लियर है सबको? सो अभी मुझे बताएगा कोई कि अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे। ये हम बेसिस कर रहे हैं, मतलब हमने जो स्टॉक मार्केट स्टार्ट किया है उसमें पहले हमने अपना ये बोल दिया कि पॉसिबल सिनेरियोस ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 है। सो व्हाट शुड बी एसोसिएटेड नेक्स्ट? बताओ भाई कोई। डू यू गेट माय क्वेश्चन? कि हमने अपना अभी हम नोटेशन ही फिक्स कर रहे हैं ना, कि टाइम फिक्स कर दिया लाइक दिस, राइट? उसके बाद सिनेरियोस फिक्स कर दिए। व्हाट नेक्स्ट? और क्या होता है मार्केट में? बताओ बेटा। इसके अलावा और हमें क्या फिक्स करना पड़ेगा? प्रोबेबिलिटीज फिक्स करनी पड़ेगी ना बेटा, कि इस इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तभी हम एनालिसिस कर पाएंगे। एम आई राइट? सो प्रोबेबिलिटी कैसे देखते हो? डिपेंडिंग ऑन द हिस्ट्री वी प्रेडिक्ट कि किस इवेंट की कितनी प्रोबेबिलिटी है। सो नेक्स्ट स्टेप इज वी एसोसिएट, नेक्स्ट वी एसोसिएट with each we associate a probability with each market scenario. इसको क्या बोलते हैं बेटा? जब आप हर इवेंट के साथ एक प्रोबेबिलिटी ऐड कर देते हो, इसका एक नाम है इस फंक्शन का, बता सकता है कोई? एक्सपेक्टेड वैल्यू? नहीं बेटा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नहीं पता? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जैसे आपके पास, मैंने अभी ये नाम ये सुना तो हुआ है ना सबने? Yes, ma'am. पीडीएफ Yes, ma'am. एंड पीएमएफ सुना होगा ना बेटा? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सुना हमने। Yes. ठीक है, probability वाले तो कोर्स पता में क्या था। है, मैं आपको समझा देती हूँ, क्योंकि मैंने एक रैंडम वेरिएबल वाली एग्जांपल आपको समझाई है, और मुझे लगता है बेटा कि प्रोबेबिलिटी आप लोगों को आना चाहिए, बीइंग कंप्यूटर इंजीनियर्स। प्रोबेबिलिटी आई थिंक इज इम्पोर्टेंट, आपको पता होना चाहिए क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास? जैसे हमारे पास हमने टॉसिंग अ टू कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस, राइट? उसमें आपके पास ये ओमेगा हो गया,
मतलब हल्का सा आप एक एग्जांपल के साथ सारी चीजें समझ आनी चाहिए आपको। हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये तो समझ में आ रहा है सबको। अब उसके बाद मैंने इसके साथ एक रैंडम वेरिएबल असाइन कर दिया। व्हाट इज दैट? दैट इज नंबर ऑफ टेल्स। सो आपके पास क्या हो गया? रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? या 0 होगी, या 1 होगी, या 2 होगी। ओके, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल से इसको x कह रहे हैं, x इज 0। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x इज 1? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x इज 2? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x इज 0? बताइए। 25%. 25 1 by 1 4. by 4, 1 by right? 4. So favorable events, number of favorable events divided by total number of events. This is 2 by 4. This is 1 by 4. So this function is your probability mass function. Probability density तब बोलते हैं जब continuous हो। ये हमारा discrete है ना? Discrete मतलब सिर्फ 3 values ले रहे हैं ना x। अगर x infinite values लो तब हम PDF बोलते हैं। यहाँ पे ये PMF है। So this is your probability mass function. Is this thing clear to everybody, बेटा? Clear? Yes, ma'am. अब हमारे पास सपोज विद ईच इवेंट द प्रोबेबिलिटी P1, P2, Pn इज एसोसिएटेड। ठीक है, सो क्योंकि यही यही सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप मार्केट के एनालिसिस करोगे, जो लोग गेस करते हैं, चार्ट स्टडी करते हैं, वो यही गेस करते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टुमारो द स्टॉक प्राइस विल गो अप, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टुमारो द स्टॉक प्राइस विल गो डाउन, है ना? यही तो यही चीजें हैं जो ये नंबर्स, दीज आर द नंबर्स विच आर, अगर किसी के गुड है, किसी एनालिस्ट के गुड नंबर्स हैं, तो वो बेटर एनालिसिस कर पाएगा और उसकी प्रेडिक्शन सही होंगी। और अगर किसी ने ये नंबर्स गलत प्रेडिक्ट किए, उसकी प्रेडिक्शन गलत होंगी और उसको लॉस होगा। ओके बेटा, सो हाउ दीज नंबर्स आर प्रेडिक्टेड, दैट फॉर दैट वी लुक एट ओल्ड डेटा कि कैसा पिछले 10 साल से कैसा परफॉर्म कर रही है कंपनी, या कंपनी के कुछ इंटरनल इश्यूज तो नहीं है। तो थिंग्स लाइक दीज आर टू बी स्टडीड टू फाइंड आउट कि क्या पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है। एम आई क्लियर बेटा? ये चीज समझ में आ गई सबको? So once you have your probabilities, then next step is, somebody was saying कि expected आप निकाल सकते हो ना, उसके बाद हम expected return निकालेंगे। क्योंकि अगर मैं किसी को कहूँ, किसी लेमैन को कहूँ कि भाई आपने अगर स्टॉक खरीदा, जैसे अभी मैंने निकाला था, कि आपका जो रिटर्न है वो ये होगा 5.45%, 5.45% माइनस 5.45%, उसको नहीं समझ में आएगा। एवरीबडी वांट्स अ सिंगल नंबर, है ना? तो दैट सिंगल नंबर इज आर एक्सपेक्टेड वैल्यू, जैसे हमने चैप्टर 1 में भी किया था। बस वहां पे क्या था कि 2 ही आपका अप डाउन वाला था, यहाँ पे कुछ भी, कितने भी सिनेरियोस हो सकते हैं। क्लियर बेटा? सो व्हाट इज, हाउ यू कंप्यूट एक्सपेक्टेड वैल्यू? सो एक्सपेक्टेड रिटर्न विल बी, how to compute expected return? So that is your values into corresponding probabilities, iska summation. So this is your expected return. Is this clear beta? किसी को डाउट? चलो ये बताओ मुझे। We estimate the probabilities, we estimate the probabilities of recession, stagnation and boom to be 1 by 4, 1 by 2 and 1 by 4 respectively in the above scenario, जो मैंने पहले किया था क्वेश्चन। ठीक है, सो व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड रिटर्न, या इसी वाले क्वेश्चन को करो। ये वाले सिनेरियो में आपकी प्रोबेबिलिटी मैं इसके साथ असाइन कर रही हूँ। अच्छा, हमने बस, चलो इसी के साथ मैं प्रोबेबिलिटी असाइन कर रही हूँ, 1 by 4, 1 by 2, 1 by 4। तो मुझे आई वांट व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ K2। करो बेटा सब लोग, मुझे आंसर बताइए। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ K1 क्या होगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ K2 क्या होगी? मतलब रिटर्न ऑन डे 1, रिटर्न ऑन डे 2।
मैम डे 1 का तो आ रहा है 2.725%। कैसे निकाला? बस यही ना, आपके पास ऑलरेडी है 5.45 इंटू 1/4 प्लस 5.45 इंटू 1/2 माइनस 5.45 इंटू 1/4। क्लियर है ना बेटा? दिस वैल्यू इंटू दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू इंटू दिस वैल्यू प्लस इंटू दिस वैल्यू, सबका सम। ऐसे ही EK2 निकालोगे आप। EK2 आ रहा है -3.81%। -3.81%। 81%। ये कितना आ रहा था E1? 2.725। ओके। So can you see ऐसा क्यों हो रहा है? Look at the prices. क्यों ये नेगेटिव आ रहा है? मैम क्योंकि वेरिएंस बहुत ज्यादा है t=2 पे। हाँ, नहीं आप देखो ना यहाँ पे k इज इक्वल टू, जब आप EK1 मतलब जब आप t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 1 पे जा रहे हो, राइट? अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या पॉसिबिलिटीज है। 50 मतलब अप जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? दैट इज 1/4 प्लस 1/2। सो अप जाने की प्रोबेबिलिटी इज क्वाइट हायर एज कंपेयर टू लो जाने की प्रोबेबिलिटी। उसके बाद यहाँ पे जब आप K2 निकाल रहे हो, मतलब आप 1 और 2 से कंपेयर कर रहे हो, मतलब 0 को आपने छोड़ दिया। अब 1 से 2 में देखिए लो जाने की प्रोबेबिलिटी इज क्वाइट हाई एंड अप जाने की प्रोबेबिलिटी इज लो, है ना? कैन यू सी बेटा? 58 से 60 एक ही बार जा रहे हो, बाकी दोनों बार आपका डाउन हो रहा है। फाइन। तो ये यहाँ पे आपकी लो जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, सो दैट इज व्हाई योर रिटर्न इज नेगेटिव। ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, बट दैट इज हैविंग लेस प्रोबेबिलिटी एज कंपेयर टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस। समझ आ गया बेटा ये? सो दीज नंबर्स विल टेल यू। ठीक है, अगर आपका नेगेटिव रिटर्न है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लॉस ही होगा। इसका मतलब बस ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग योर मनी इज हायर एज कंपेयर टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेनिंग एनीथिंग। फाइन। Okay, so I just want to know आपको returns अच्छे से समझ में आए? Can you prove this thing for me? K1 plus KNM, where this is return, normal return, not the logarithmic return. This is equal to 1 plus K n plus 1, 1 plus K n plus 2, and so on, 1 plus Km. Can you please prove it? Same जैसे वो सेम चीज होगा ना, क्योंकि हाँ, लॉगरिथमिक e की जो पावर होते हैं, तो इसकी वजह से लॉग है। यहाँ पे आपके पास ये देखो, मतलब एडिटिविटी की जगह पे ये है आपके पास, वहां पे एडिटिविटी आ जाती है क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल में चला जाता है। यहाँ पे एडिटिविटी वाला रिलेशन नहीं है, बट दिस इज हाउ यू कैन रिलेट देम, राइट? सो ये प्रूफ सेम ही है। यहाँ पे आपके पास यही है ना आपके पास की जो आपका SM माइनस SN अपॉन SN है, दैट इज योर KNM, राइट? सो यहाँ से आपके पास आ गया कि जो SM है दैट इज SN1 प्लस KNM। नाउ गो बाय वन स्टेप। सो वन स्टेप मतलब SN से आप SN प्लस 1 में गए, तो SN प्लस 1 is related to SN by the same relation 1 plus KN plus 1. KN plus 1 stands for KN comma N plus 1. KN comma KN plus 1 comma N, right? यही था ना? नहीं, उल्टा बोल रहे। KN comma N plus 1. ठीक है। So go one step at a time. So you just multiply. ठीक है, तो आपके पास ये सेम चीज आ जाएगी 1 plus KM, राइट? सो मल्टीप्लाई करोगे ये कैंसिल हो जाएंगे, so you'll get your SM to be SN 1 plus KN plus 1 and so on 1 plus KM. So this is equal to this. This quantity is equal to this quantity. क्लियर है बेटा ये चीज? तो ये आपके फॉर्मूलाज जो हैं वो आप यूज कर सकते हो अगर आपके पास कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था। ओके, किसी को डाउट बेटा यहाँ तक?
कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी. So from here slowly we will move to continuous models. अभी कल हम नेक्स्ट क्लास में, मतलब जब भी हमारी, कल तो हम लैब करेंगे, नेक्स्ट क्लास में we'll move to binomial model. Binomial model आपने शायद पढ़ा है, ऑफ स्टॉक प्राइसेस पढ़ा है बेटा? मैम वो था हमारे कोर्स में नहीं था, मतलब मैम ने कराया। ठीक है, ठीक है, ओके बेटा. सो आपके असेसमेंट्स आपको पता है ना सबको, बाकी तो बस लैब हमने शिफ्ट की है, जो मैंने कल बताया था सेम है. लेट मी जस्ट शेयर दैट स्क्रीन. कल वाला सेम है एक्सेप्ट दैट लैब इज शिफ्टेड टू 29th of April. ठीक है, असाइनमेंट में आपको दे दूंगी, तो यू हैव टू सबमिट योर असाइनमेंट बाय 24th April. और क्विज का सिलेबस जो है फर्स्ट 2 चैप्टर्स, 1-2 चैप्टर्स. ठीक है, तो ये मैम कर ले. मतलब ये वाला चैप्टर अभी हम कर रहे हैं, ये नहीं आया। ये बेटा आपकी असाइनमेंट का पार्ट होगा. ठीक है, ठीक है। ये जो हमने चैप्टर कर रहे हैं ये असाइनमेंट, क्योंकि फिर आपको मैं ये करा ही रही हूँ, 17 को आपका क्विज है. सो बट मैं असाइनमेंट दे दूंगी आपको, सो दैट ईशांगी कह रही थी कि वी विल हैव एन आइडिया कि कैसे क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, तो असाइनमेंट मैं आपको दे दूंगी. मैं कब दोगे? मैं बेटा मोस्ट प्रोबेबली मंडे, संडे या मंडे को दूंगी. ठीक है। चलो, कल वी विल मीट फॉर द लैब सेशन. किसी को डाउट है पुराना पूछ लो कोई प्लीज, अगर कुछ डाउट है आपके. पढ़ाई कर रहे हो आप लोग? मैम हम लोग मतलब बुक से करें, बट बुक से तो आपने काफी एग्जांपल्स कराए हैं। तो आप एक दूसरी बुक जो मैंने JCL वाली भी शेयर किया ना आपसे, कौन सी मैम? आपने क्या बोला, बुक से आपने काफी? मैम जो आप बुक से, आपने तो वैसे जो बुक ड्राइव पे अपलोड करी थी वो तो सेम ही है जिससे आप करवा रहे हो, तो एग्जांपल्स उसमें हैं। हाँ, तो मैं एक वही कह रही हूँ, असाइनमेंट दे दूंगी, और 1-2 बुक्स में, और एक और बुक है JCL. ठीक है, तो जैसे मैंने फर्स्ट डे वो बुक भी मैं आपसे शेयर कर दूंगी. ठीक है, ये वाली बुक है ना. ठीक है। ठीक है, और भी मैं आपसे शेयर कर दूंगी. इन्वेस्टमेंट साइंस इज ऑल्सो गुड बुक. ठीक है, 1 मिनट मैम मेरे आप ये साइट पे डाल देना जो वो मैंने डाल, ड्राइव पे। मैं ईशांगी के साथ शेयर कर दूंगी. जस्ट अ मिनट, आपको इन्वेस्टमेंट साइंस तो आप गूगल पे डालोगे ना, आपको उसका PDF मिल जाएगा. 1 मिनट, मैं आपको जैसे ये 3 बुक्स हैं जो मैं पढ़ रही हूँ अभी. ठीक है, इन्वेस्टमेंट साइंस में यू विल हैव, दिस इज ऑल्सो गुड बुक जो मैंने लिखवाई है, 3rd नंबर वाली. इसमें आपके पास ये देखो सेम आपका, बस इसमें चैप्टर्स हम अलग कर रहे हैं. ठीक है, जैसे ये सारा डिटर्मिनिस्टिक कैश फ्लो, ये आपका जो है जो हमने किया है बॉन्ड्स, रिस्क फ्री एसेट्स, ये पूरा सेकंड चैप्टर, 3rd चैप्टर. और फर्स्ट चैप्टर आपका जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया है, मार्केट्स क्या होती हैं. ठीक है, तो ये वाली बुक भी आप पढ़ सकते हो. ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स, देन वी आर गोइंग टू रिस्की एसेट्स. सो ये इन्वेस्टमेंट साइंस वाली बुक में ना ईशांगी से शेयर कर दूंगी, देन शी विल शेयर विद यू पीपल. ठीक है, दोनों ही, तीनों ही कर दूंगी, बाकी 2 बच्चे वो भी कर दूंगी. ठीक है बेटा, ओके। चलो ठीक है. एनीथिंग एल्स? ओके बेटा, देन वील मीट एट 3:30 टुमारो. ठीक है, थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू मैम. ओके बेटा, थैंक यू.